हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ वन सच केस जिसकी मैंने जहाँ भी बात की है लोग बहुत हैरान हुए हैं। लोगों ने बोला है कि शायद ये रेडिकुलस है, शायद वेस्ट ऑफ टाइम है। और सिर्फ लोगों ने ही नहीं, इस केस ने अपने आप को पहुँचा लिया था टॉप मोस्ट रेडिकुलस केसेस ऑफ द ईयर की लिस्ट तक। तो इतना रेडिकुलस लगा था ये पूरी दुनिया भर में लोगों को इन द ईयर 2018-19। दिस इज द मंकी सेल्फी केस और नरूतो वर्सेस स्लेटर। हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट ईशा कपूर एंड यू आर वाचिंग वीलॉगिश। Talking about the case of Naruto versus Slater. Naruto apparently, as I said, is the name of a monkey, and Slater is Mr. David Slater, who's you can say a wildlife photographer, an enthusiast who loved traveling into the forest, etc., to study the lives of animals. And one fine day, he simply went to the jungles of the forests of Indonesia, and there he wanted to capture the images of monkeys, other animals. He wanted to see if they'll allow him to photograph them, but apparently he found that they were quite shy of the camera and they were not allowing him to photograph the way he wanted, and he wanted natural reactions. Naturally, the next thing that came to his mind was, let me set up this camera here and let it stay here for whole night, for whole day, and let me see the next day if these monkeys do something on their own with the camera. Of course he wanted to study maybe the behavioral patterns, maybe he wanted to see what kind of pictures, photographs are clicked by these monkeys living in the forest. And next day when he saw his camera, he literally found that there were photographs, there were selfies clicked by monkeys. One of those monkeys was Naruto, and these were very good pictures. One picture where the monkey was a little shy and he was looking at his own image because it was a selfie camera, and one picture where the monkey was completely relaxed and he did not care what he looked like, etc. So he posted it on some platforms, a website, etc. But he was unaware at the time what kind of lawsuit awaits him, and this gave birth to one of the most ridiculous law cases of all times. It was Naruto versus Slater I am talking about. The US Court 9th Circuit Court of Appeals decision. Before we dive deep into the judgment of Naruto versus Slater और मैं आपसे इस बारे में और बात करूं, एक खुशखबरी है उन सभी लोगों के लिए जिनको लगता है कि उनको ऐसे केसेस और पढ़ने हैं, उनको लॉ में जाना है, या आपके बच्चे हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं. You need to know that physics वाला has come up with a CLAT entrance examination course. Less than 100 days are left for the exam that you need to crack if you want to become a lawyer in India, if you want to enter the law school. And in these 100 days it is very difficult to prepare. You have to have a strategy, you have to prepare, you have to make notes, you have to give test series, all of that. If that can be found under one roof, in one website, in one course, then why not take it? Of course I know कि finances होते हैं जो आपको रोकते हैं, but यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे सेल की वजह से ये जो फिजिक्स वाला का क्लैट पावर प्रेप बैच है जो आपको 100 दिनों से भी कम में क्लैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा देगा, ये आपको बहुत बड़े डिस्काउंट में मिल रहा है. लेस देन 3,000 रुपीज 2978. अगर ये इंडिपेंडेंस डे सेल ना होती तो इस बैच का प्राइस 9999 है. दैट मीन्स क्लोज टू 10,000. सो 10,000 और 3,000 में जो फ़र्क है वो आप भी समझते हैं, और ये बैच कितना अफोर्डेबल है ये भी आप समझते हैं. यहाँ पे मुझे अपनी स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है, आप लोगों को भी दिखेगा कि 280 प्लस आवर्स से ज़्यादा के लाइव लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. 20 मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी. तो आपकी दोनों तैयारी हो रही है, आपको पढ़ाया भी जा रहा है, आपके टेस्ट भी लिए जा रहे हैं, आपका इवैल्यूएशन भी हो रहा है. फैकल्टी तो यहाँ पे कमाल की है ही है, साथ में क्लैट और साथ में आईलेट एग्जाम का भी पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे. तो जो आपको कुछ NLUs के लिए भी जो एग्जाम आपको क्रैक करना होता है उसके लिए भी आपका सिलेबस यहाँ कवर हो जाएगा. साथ में नॉट ओनली दिस बट यू आर ऑल्सो गेटिंग देयर खजाना पैकेज, जहाँ पे रैंक बूस्टर 2024 बैच के बेस्ट लेक्चर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. तो इतना सब खजाना इसी में था, साथ में खजाना पैकेज और उन्होंने जोड़ दिया. इसके अलावा भी इफ यू थिंक यूड लाइक टू हैव मोर डिस्काउंट, इससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए, तो यूज माई कोड VL2000 फॉर गेटिंग इवन मोर डिस्काउंट ऑन द प्राइस दैट्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड. ये सब करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे सिंपली क्लिक करना पड़ेगा और जाके एक बार देखना पड़ेगा कि क्या ये बैच आपको सूट करता है. वैसे मेरे हिसाब से ये बैच उन सबको सूट करेगा जो क्लैट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं. सो इंडिपेंडेंस डे ऑफर का फायदा उठाइए, टॉप नॉच फैकल्टी से पढ़िए. अपनी स्क्रीन पे जो आपको क्रिएटिव दिख रहा है, जो आपको पोस्टर दिख रहा है, उसको ज़रा ध्यान से देखिए. क्वेश्चन बैंक का फ़ायदा उठाइए, लाइव लेक्चर्स का उठाइए, और फिजिक्स वाला की जो रैपो है उससे फ़ायदा लीजिए. गो क्रैक द क्लैट एग्जाम.
हम वापस नरूतो वर्सेस स्लेटर पे आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मंकी जो है उन्होंने जब तक डेविड स्लेटर वापस आए, मंकीज बहुत सारी सेल्फी क्लिक कर चुके थे। डेविड स्लेटर वाज वेरी हैप्पी, उन्होंने अपलोड कर दिया एक प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वहाँ से वन other person who was the plaintiff here and one organization which is PETA, आप सब जानते हैं PETA आप उसे जो भी कहें, PETA, उन्होंने नरूतो के बिहाफ पे केस फाइल कर दिया। अब ये केस क्या था? उन्होंने बोला कि नरूतो ने ये सेल्फीज ली हैं, मंकी ने ये सेल्फीज ली हैं, हाउ कैन डेविड स्लेटर क्लेम बेनिफिट आउट ऑफ इट? इनको क्यों इसकी रॉयल्टी आएगी? ये क्यों इसकी पॉपुलैरिटी से फायदा उठाएंगे? इसका फायदा तो मंकीज को उठाना चाहिए था। अब मंकीज खुद आके तो सू नहीं कर सकते हैं, दे आर नॉट दैट सिविलाइज्ड एंड देयरफॉर PETA said that I am the next friend of monkeys। ये एक कॉन्सेप्ट होता है लॉ में कि अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपका नेक्स्ट फ्रेंड फाइल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल दोज हु आर इंडियंस हियर, आप ये जानते हैं कि इंडिया में गॉड के बिहाफ पे केसेस फाइल होते हैं, केसेस बीइंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड हनुमान, ऑन बिहाफ ऑफ रामलला। मंदिरों को रिप्रेजेंट, मंदिरों में बैठे या स्थापित हुए भगवान को रिप्रेजेंट किया जाता है इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कि हम उनके नेक्स्ट फ्रेंड है, हमारा हक बनता है उनके बिहाफ पे सू करने का, उनके अधिकारों के लिए लड़ने का। बट US कोर्ट ऑफ अपील्स तक जब ये केस पहुंचा, 9th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स तक, तो उन्होंने बोला कि हमें इवेलुएट करने की जरूरत है कि क्या PETA जो है वो नेक्स्ट फ्रेंड है भी या नहीं है। उन्होंने बोला ये जो नेक्स्ट फ्रेंड का कॉन्सेप्ट है ना, ये उन लोगों के लिए है, एक तो जो अपने आप को खुद से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कैपेसिटी नहीं रखते, मेंटल कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी, किसी भी तरह की, वो इतने केपेबल ही नहीं है कि वो कोर्ट में खुद से आ सकें। तो यस, मंकीज इतने केपेबल नहीं है, नरूतो इतने केपेबल नहीं थे। बीइंग एन एनिमल, ही वाज नॉट कल्चर्ड इनफ, ही वाज नॉट सिविलाइज्ड इनफ, ही डिड नॉट नो हाउ टू अप्रोच द कोर्ट, ही वाज ऑफ कोर्स नॉट अवेयर ऑफ द प्रोसीजर ऑल्सो। दिस इज ऑल मैन मेड। एंड सेकेंडली, ये जो नेक्स्ट फ्रेंड हैं, इनके मन में जो इंटेंट है वो अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने का होना चाहिए। तो इसके लिए ये कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाए। ऐसा क्या वो करते हैं इन मंकीज के लिए? कहीं उनका ही खुद का इंटरेस्ट तो नहीं है? तो PETA ने इसको जस्टिफाई करने के लिए बोला कि जी हम बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो मंकीज या फिर एनिमल्स के राइट्स के लिए काम करते हैं, इसीलिए हमारा हक बनता है उनके लिए लड़ने का भी। अब एक समय पे क्या हुआ, 9th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के इस केस को डिसाइड करने से पहले ही डेविड स्लेटर को लगा दिस इज गोइंग नोवेयर, बेकार में ही इतना बड़ा इशू बन रहा है, मुझे पता भी नहीं था इतना बड़ा बन जाएगा, तो मैं सेटलमेंट करने के लिए राजी हो जाता हूँ। और PETA और डेविड स्लेटर के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटलमेंट हो गया, मतलब कि डिफेंडेंट्स और अपीलेंट्स के बीच में सेटलमेंट हो गया। अब ये सेटलमेंट ये रहा कि उन्होंने अग्री कर लिया मिस्टर स्लेटर ने कि जितना भी पैसा मैं इन वीडियोस से, फोटोज से जो मंकीज ने ली हैं उससे आ रहा है मेरे पास रॉयल्टी का, मैं उसका 25% डोनेट करूंगा टुवर्ड्स द कॉज ऑफ दीज मंकीज। ठीक है, बात सही हो गई है। लेकिन जब तक ये केस 9th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स तक पहुंचा, जो फाइनल कोर्ट, मतलब इस केस के लिहाज से फाइनल कोर्ट था जहां डिसाइड हुआ, उससे आगे केस नहीं गया, 2018 की ही बात है, 2018 इट इज। वहाँ पर कोर्ट ने टुवर्ड्स द एंड ये एस्टैब्लिश किया कि PETA जो इतना क्लेम कर रहा है अपने आप को कि मैं मंकीज का नेक्स्ट फ्रेंड हूँ, मैं उनके बिहाफ पे फाइट कर रहा हूँ, कोर्ट के सामने कुछ ऐसे इंस्टेंसेस आए जहाँ उन्हें पता चला कि PETA इज जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट्स ओन पॉपुलैरिटी एंड इट मे हैव हैड द कॉज ऑफ मंकीज ऑल्सो इन इट्स हेड, बट एंटायरली वो नहीं था। तो नेक्स्ट फ्रेंड के कॉन्सेप्ट में वो फॉल नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं कोर्ट ने ऐसे रिमार्क्स भी दिए कि आप सिर्फ अपने बारे में उस समय पे सोच रहे थे, इसलिए डू नॉट क्लेम टू बी so nice, do not claim to be so much thinking about the rights of monkeys and the rights of animals। तो कहीं ना कहीं इसलिए ये केस ऐसा था जिसने टॉप मोस्ट वियर्ड केसेस की लिस्ट में अपने आप को दर्ज कराया। फिर कई सारे क्वेश्चंस थे कि जैसे कॉपीराइट एक्ट में मंकीज सू कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो तो पहले ही ये साबित हो गया था कि मंकीज सू नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई भी राइट मंकीज को नहीं दिया गया है, दो दे हैव द राइट टू लिव एक्सेट्रा, बट वो ऐसे सू तो नहीं कर सकते। कॉपीराइट क्या होता है ना, किसी भी अनरजिस्टर्ड चीज में भी कॉपीराइट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कि आपको कॉपीराइट क्लेम करने के लिए रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो टुडे, ज़रूरी नहीं है कि मैं जाके IPR ऑफिस में इस पर अपना कॉपीराइट रजिस्टर करवाऊँ जैसे कि पेटेंट के या ट्रेडमार्क के केस में ज़रूरी है, बल्कि अनरजिस्टर्ड कॉपीराइट इज एज गुड एज
मतलब बाकी सारी जैसे रजिस्टर्ड चीज़ें होती हैं। तो कॉपीराइट को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं। अगर आप आज इस वीडियो को कॉपी कर लेंगे तो मैं फिर भी अपना कॉपीराइट इसमें क्लेम कर पाऊंगी बड़े अच्छे से कि ये तो मैंने बनाई थी, ये तो मेरा कंटेंट है, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आप कैसे इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर या अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं? नो, यू कैन नॉट डू दैट। तो ऐसे ही बस इसी कॉन्सेप्ट को लेके पीटा भी आ गया, और एक और उनके साथ में एक और प्लेंटिफ भी थे जो आगे पूरा केस तो नहीं लड़ पाए, बट शुरू में तो थे। उन्होंने कहा जी मंकीज़ ने बड़ी मेहनत की है, या मंकीज़ के आइडिया हैं ये क्रिएटिव, तो जिसके क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उसको कॉपीराइट मिलना चाहिए। ऐसे कैसे मिस्टर स्लेटर पोस्ट कर देंगे इन फोटोज़ एंड वीडियोज़ को? अब जो भी था, इवन आई हैव दिस हम्बल ओपिनियन कि उनके मन में इंटरेस्ट ऑफ एनिमल्स तो कहीं ना कहीं इतना नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि ये इस केस के ना सर थे ना पैर थे, बट यू नेवर नो किस तरह के केसेस आ जाए। आई टेल दिस टू एवरीबडी आई मीट, आई टेल दिस टू द चिल्ड्रन आई मीट, टू द लॉ स्टूडेंट्स आई मीट एंड टू द एल्डर्स दैट आई मीट, कि आप प्लीज़ कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन सब के कॉन्सेप्ट को सीरियसली लें। अगर किसी दिन आके मंकी सू कर सकते हैं तो आप ये जो रैंडमली किसी के भी वीडियोज़ उठा के इंटरनेट से और अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट कर देते हैं, वो ऑडियो मिक्सिंग कर लेते हैं, आप हो सकता है कि किसी दिन बहुत बड़े ट्रबल में फंस जाए। प्लीज़ ये सीखें कि जितना बड़ा ऑफेंस किसी के घर से उनका सामान चोरी करना है, उतना ही बड़ा ऑफेंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की थेफ्ट भी है। तो ऐसा कुछ नहीं करिए, वरना ऐसा ना हो कि कल को फिर से कोई मंकी आए और आपको सू कर दे। जोक्स अपार्ट, बट लेट्स टेक ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स वेरी सीरियसली। आई होप यू लाइक्ड हियरिंग अबाउट दिस मंकी सेल्फी केस, नरूतो वर्सेस स्लेटर, जहाँ पे मंकीज़ ने जीना मुश्किल कर दिया था एक इतने बड़े वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और इतने बड़े प्रोफेशनल इंसान का। तो हम तो क्या ही चीज़ है, राइट? Yes, with this I'd just like to convey that I enjoyed making this video. मेरे दिमाग में बहुत पहले से था कि मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको बताना है, इस केस के बारे में बताना है। Thank you so much for watching this entire video, and with this I can only promise to you that I'll come back very soon with a new video on a new concept. Keep watching Vlogish. Bye for now.